So guys, anyone can confirm, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So we are on the page number of 117. So anyone have any question, any concern regarding while loop, do while loop and for loop, or any kind of question anyone have? No? Okay. So we can begin. So far we talk about the while loop, do while loop, and the for loop. So while loop we will use when we don't know how much iteration we need to perform. So in that scenario we can use while loop. Do while loop we can use. So at least one times we want to make it execute the body, before check the condition. So we can use do while loop, for loop. So most commonly used loop is called the for loop. So in for loop argument, there are three argument would be. The first argument we can call it initialization section, then conditional section, then increment or decrement section. Okay, this initialization will execute, one time. Okay, then second time condition will check. If condition is true, then body will execute, and it will go on the increment decrement section. Okay, so once increment will happen, again condition will check, so loop will move like this. Okay, once condition will false, it will go out of this body. Okay guys, without without this curly braces, also without this curly braces also we can write only one statement. Okay, so it is a valid, but that should not be declarative. Okay, I mean some initialization kind of things we should not do. So we have discussed with this example, और हम लोगों ने practically verify किया था कि आपको initialization section only one time execute होगा ना. Sys out, we print here, and we verify this initialization is happening one time only. Okay, conditional expression. So conditional expression we can take, any Java expression, but the result should be क्या होना चाहिए आपका, कोई भी Java expression ले सकते हो, result आपका होना चाहिए boolean type का, either true or false. So it is optional. If we are not specifying, then compiler will always, it will take here true. अगर आप इसकी जगह पे कुछ लिखोगे नहीं ना, यहाँ पे ये जो कंडीशनल के प्लेस पे आप कुछ लिखोगे नहीं ना, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, ट्रू. और अगर ट्रू रहेगा तो आपका लूप क्या चलने वाला है, इन्फिनिटी. ओके, so increment and decrement section we can take any valid Java
स्टेटमेंट इंक्लूडिंग यहाँ पे सिस आउट भी यूज कर सकते हैं हम लोग. ओके, वी कैन यूज सिस आउट एज वेल. But yeah, this condition would be true, body will execute, then again this increment or decrement section will execute. So the loop will go in this way. Okay, anyone saying something? All three parts of loop are independent of each other. Give me a moment, I don't know. We put the pause just to us. Okay. All three parts of loop are independent of each other. All three parts of loop are optional. Okay. आप बगैर इसके भी आप लिख सकते हो. I mean, you know, without expression or statement, we can put in this way, comma, semicolon separated we can put. Okay. So it is a valid statement, but it does not make any sense, है ना. अगर आप लिखोगे तो valid है. By default ये क्या होगा, यहाँ पर true होगा, तो infinity time तक loop आपका चलता रहेगा. Now example 1 we can see, for int I is equal to 0, और यहाँ पे हमने put कर दिया true and I plus plus. तो ये आपकी constant value, this is called the constant value, this true is called the constant value. तो आपका ये क्या होने वाला है, hello infinity times चलने वाला है. तो जो hello इस for loop के बाद वाली statement कभी भी execute नहीं होने वाली. So compiler understand it and it is giving compile time error saying unreachable code. Okay, ये वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो अनरीचेबल कोड की यहाँ पे एरर इसने दे दिया. सो इफ यू आर पुटिंग हियर फॉल्स, तो जब फॉल्स कर दिया तो ये अंदर वाली स्टेटमेंट कभी भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली. ओके, सो ओनली इट विल चेक हियर फॉल्स, गो आउट ऑफ दिस लूप, गो आउट ऑफ दिस लूप, और इसने क्या दे दिया, कंपाइल टाइम एरर सेइंग this hello will not execute. So this statement is called the unreachable. Okay, so compile time error दे देगा unreachable. Okay, next you can see here int I is equal to 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, I plus plus. Then also compiler know कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ नहीं पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे boolean टाइप की होगी, और that would be the true, और true होगा तो infinity चलेगा, hello print होगा, हाई पर ये आपका कंपाइलर कभी इसको, ये हाई वाली लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली. तो हियर आल्सो इट विल गिव द अनरीचेबल कोड. ओके, तो ये वन लाइक यू नो सॉरी, ऑल पॉइंट यू नीड टू वेरीफाई कि द थिंग्स व्हिच इज गिवन इज आई मीन वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट. नेक्स्ट वी कैन सी int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20. सो पहला स्टेटमेंट इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. सो i इक्वल टू 0, a less than b, a less than b. बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है गाइस, और ट्रू और फॉल्स, a less than b ट्रू है, ट्रू है. तो अब बताइए यहाँ भी ट्रू है, ठीक है, और ये हेलो प्रिंट कर रहा है ना, हेलो हेलो प्रिंट कर रहा है, और कंडीशन यहाँ भी ट्रू थी. बट यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्यों दे रहा है, और यहाँ कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 10 और 20, और वहाँ कांस्टेंट वैल्यू काइंड है, नीचे वेरिएबल, राइट. यहाँ कांस्टेंट है और ये क्या वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, राइट. सो दैट्स व्हाई अगर आप कांस्टेंट वैल्यू के प्लेस पे, और दिस इज नॉट ओनली विद दिस ओनली, है ना, ये फॉर केस में भी हो सकता है आपका, सॉरी व्हाइल के में, डू व्हाइल के में, किसी भी केस में हो सकता है कि अगर आप एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो, केस अगर कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है ना, तो जो आउटर वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, राइट. अगर फॉल्स हो रहा है तो इनर वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली. लेकिन एट द प्लेस ऑफ दिस अगर कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, उसकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है, देन इवन दो हमें मालूम है, दिस बी नो कि ये आपका हाई कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओनली हेलो इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, बट कंपाइलर डोंट नो. कंपाइलर व्हाट अंडरस्टैंड कि ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली क्या होती रहती है, चेंज. सो नेक्स्ट अगर इसको फाइनल कर दिया, देन कंपाइलर अंडरस्टैंड अब इनका वैल्यू फिक्स हो गया है, नो वन कैन चेंज.
तो अब क्या होगा यहाँ पे, ओनली हेलो विल एग्जीक्यूट, हाई इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, देन वी विल गेट हियर अनरीचेबल कोड. सो ऑल दी 5 केस आप प्रैक्टिकली करके इनको वेरीफाई कर लो, अदरवाइज आई कैन टेल यू. ओके, लेट मी स्विच दी वर्क स्पेस हियर. Just give me a minute. So all the point you can verify with one program only कि हम जो whatever written is correct or not. Then next we are going to see this for each, and for each के बाद then again we will come on this for, और इसके हम लोग further example we are going to see. Okay. Okay, in the test class only we can verify. Okay, here only we can verify. Okay, so int, not int, for loop, this time directly using here for loop. Okay, int I is equal to 0. Okay, then I'm putting here true, and just I'm putting here I plus plus. Okay. So what we are going to do, what happened? Okay, this is just a warning kind of things, and here we can print hello. Okay, so this is going to print hello, and just here I am putting here hi. See, अब compile ने इसमें क्या किया यहाँ पे ना, it is giving the error compile unreachable code. Why it's giving unreachable code? क्योंकि यहाँ पे we put here constant value. ओके अगर हम कुछ भी पुट नहीं कर रहे हैं देन ऑल्सो इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे क्या रहने वाली है आपकी ट्रू. ओके, नाउ एक्चुअली आई एम टेकिंग हियर इंट a is equal to 10 comma b is equal to 20. So let me put in this way, a less than b. So this condition is also true. Okay, but it is not giving any unreachable code because variables value changes, So let me run it, and this loop will go in a infinity. Okay, this loop will go in a infinity. So like this, all the examples we can verify and we can understand. So whatever written here. Okay. Okay, if we are putting here some false here, if we are writing here false, then also it will give, क्योंकि अगर false कर दिया तो ये loop के अंदर वाली statement है, ये कभी execute नहीं होने वाली. Okay, so it will give the unreachable code. Here also it will give the unreachable code. Same अगर इसकी जगह हम लोग क्या कर दें, अगर variables के केस में false कर दें a greater than b, ये भी condition false है. We know that this line is not going to execute, but still it is not giving the compile time error, and we understand why it is not giving. Okay, so all the point we can verify, so whatever are given here. Okay, so for loop से related किसी का कोई question, किसी का कोई doubt, any kind of question? No. Okay, so next loop हमारा क्या है, for each. Okay, next loop क्या है हमारा, for each है. हेलो सर, पैकेज जो आपने मेंशन किया था वो फॉर लूप के लिए मैंडेटरी था प्रोग्राम में. कौन सा वाला पैकेज? ऊपर प्रोग्राम के सबसे ऊपर पैकेज, ये वाला बोल रहे हो? जी. ओके, ये मैंडेटरी तो मतलब नहीं है, ये तो मतलब आप
जैसे आप अपना पैकेज वहां पर जो दिया होगा ना आपने, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पैकेज को इसका नाम दे दो, है ना, com डॉट वट एवर योर नेम देन द कॉन्सेप्ट विच वी आर लर्निंग। जैसे मान लीजिए मैं फ्लो कंट्रोल पढ़ रहा हूँ, you know, just I'm teaching the flow controls. What we can do here, com.rsg.flow control. तो at the place of rsg any I mean package you can put. इस पैकेज से हेल्प क्या करता है हमारा, कि हमारा अगर एक ही पैकेज में सारा प्रोग्राम रखेंगे तो यू कैन लुक एट दिस। इसमें भी देखो टेस्ट क्लास है, यहाँ भी टेस्ट क्लास है, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो डुप्लीकेट्स का कोई इसमें इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड सेपरेट्स ऑफ कोड वी आर एबल टू गेट, कि आपका फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फ्लो कंट्रोल पैकेज में है, डेटा टाइप से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो डेटा टाइप के पैकेज में है। तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग एनी पैकेज यू कैन क्रिएट, बट बगैर पैकेज के आप ना बनाए, ठीक है। क्रिएट दी पैकेज, और पैकेज का एक चैप्टर भी है इसमें जिसमें डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि वाई पैकेज इज इम्पोर्टेंट। और आईटी इंडस्ट्री में इस स्टैंडर्ड को फॉलो भी करके चलते हैं कि जनरली हर डेवलपर्स को पता होता है कि कौन सी क्लास किस पैकेज के अंदर होगी। तो कुछ पैकेज हैं वो, जैसे मान लीजिए कंट्रोलर पैकेज हो गया, राइट, सर्विस पैकेज हो गया, डाओ पैकेज हो गया, राइट, मॉडल पैकेज हो गया। तो इस तरीके से हमें मालूम होता है कि कौन सी क्लास हमें किस पैकेज के अंदर लिखनी है, और ईच एंड एवरीवन फॉलो दिस स्टैंडर्ड। उसका थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू हियर। कुछ इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बैंक का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो, आपने ले लिया com.icic डॉट, है ना, ICIC डॉट बैंक डॉट समथिंग, आपने लोन ले लिया एक, है ना, लोन एक पैकेज ले लिया। अब लोन के भी अलग अलग कैटेगरी है, होम लोन, पर्सनल लोन, और यू मे बी क्रेडिट कार्ड लोन, अलग अलग लोन का कैटेगरी है। तो आपका पैकेज कैसे बनेगा, com.icic.loan, और लोन के बाद फिर से डॉट करके आके आपका आ गया पर्सनल, है ना, पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे इस वाले पैकेज में जाएंगे। होम लोन एंड बाकी आपका जो बेस पैकेज रहेगा आपका com.icic.loan, ये सबका बेस पैकेज रहना, राइट। इसके बाद आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। यहाँ भी अगर आप देखोगे, अगर आप गौर से यहाँ देखोगे, com.rsc.array, com.rsc. कोडिंग स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे जो com.rsc ये बेस पैकेज है, ये सबके लिए कॉमन है ना, ओनली ये चेंज हो जा रहा है, राइट। तो ऐसे ही या क्या होता है कि इंडस्ट्री में जैसे हम एक ट्रेडिशनल ये डायग्राम जो फॉलो करके चलते हैं यहाँ पे, है ना, फॉलो दिस डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर होता है, एक सर्विस होता है, एक डाव होता है, ठीक है, एक यहाँ पे मॉडल और होता है, राइट, मॉडल होता है एक क्लास यहाँ पे। तो अगर देखें हम लोग तो कॉम डॉट, और जैसे मान लीजिए मैं वर्क कर रहा हूँ सिटी बैंक के लिए, com.citibank.controller, तो कंट्रोलर से रिलेटेड सारी क्लासेस उस पैकेज के अंदर जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सर्विस लेयर, उसको बोल रहे थे जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, तो citibank.सर्विस लेयर, तो जितनी भी आपकी सर्विस इंटरफेस है, सर्विस IMPL है, वो उसके अंदर जाएंगे। देन आपका होगा com.citibank.DAO, तो DAO इंटरफेस एंड DAO IMPL, ऑल दी क्लासेस एंड इंटरफेस आपके उस पैकेज के अंदर जाएंगे। देन आपकी मॉडल क्लास होंगी जो यहाँ से डेटा ले जाने का काम कर रही होंगी, तो मॉडल क्लास के लिए क्या होगा, com.citibank.model, सारी मॉडल क्लासेस आपकी उस पैकेज के अंदर आ जाएंगी। फिर जनरली क्या होता है कि कुछ सपोर्ट के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई डाओ के लिए, सर्विस के लिए, इन सब के सपोर्ट के लिए कुछ मेथड किसी क्लास में लिखते हैं, कॉमन मेथड है, क्लास के नाम से कॉल कर ले रहे हैं उन्हें, तो ये यूटिल पैकेज बनाते हैं com.citibank.util, तो वो सारी यूटिल पैकेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आ जाएंगे। ये जो स्टैंडर्ड है जनरली हम फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को कोई डाओ में इशू आ रहा है, तो वो डाओ पैकेज ओपन करेगा एंड ही कैन फाइंड आउट इन विच क्लास वी आर फेसिंग व्हाट काइंड ऑफ इशू, ओके। तो उससे इनहेंसमेंट करना आसान होता है ना, बग फिक्स करना इजी होता है, कोड को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो एज पर योर कन्वीनियंट यू कैन पुट योर पैकेज, ओके। ये इसलिए मैं हमेशा वैसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो अगर ये चला भी जाता है जैसे इग्नोर इट, ओके। आपको खुद अपना पैकेज बनाओ, ठीक है, एंड इन देयर यू कैन, और कोशिश करो कि आप देख के उसको टाइप करने की कोशिश करो जिससे आपके
सिंटेक्स मिस्टेक होंगी शुरू में, तो वो आपको पता लगेगा, गलतियां होंगी तो उससे आप सीखोगे, ठीक है। सो ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो लूप है वो फॉर ईच लूप है, और फॉर ईच लूप बेसिकली क्या करता है, ये फॉर का इनहेंस। हाँ हाँ सर, फॉर लूप में हमको ऐसा, जैसे अभी हमने इंट वेरिएबल का यूज किया है यहाँ पर, तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल का कोई जैसे अगर एग्जांपल हो तो उससे हम कर अभी हम सकते हैं लोग क्या? अभी काजल हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं इस फॉर लूप पे। अगेन आई एम कमिंग ऑन दिस, ओके। सो यहाँ आप केयर टाइप का वेरिएबल ले सकते हो, स्ट्रिंग का ले सकते हो, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल यू कैन टेक, ओके। सो लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर ईच, देन अगेन आई एम कमिंग हियर, और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं। और कोशिश ये करिए कि हर रोज आप एक लूप का एक प्रोग्राम तो बनाइए हर रोज, है ना। तो उसका हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे प्लान करते हैं, ठीक है, जिससे एटलीस्ट हम इस पोजीशन में हो कि हमारे अंदर लॉजिक्स डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो वी विल कम ऑन दैट, ओके। सो एक यहाँ पे इनहेंस फॉर ईच जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1.5 वर्जन, और here we can say this is the most convenient loop to retrieve the element of array and collection। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरे एंड कलेक्शन को रिट्रीव करने के लिए हम ये लूप यूज करते हैं फॉर ईच, ओके। तो अभी हमने शायद लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एरे के लिए अगर हमें कोई एरे को इटरेट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन इटरेट अ एरे, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने एरे का एक डेमो देखा था ना। एरे, सपोज एरे में मैं 5 एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ और एक फॉर लूप के थ्रू उसको इटरेट करता हूँ, ओके। देन उसको देखेंगे फॉर ईच के थ्रू कैसे इटरेट करेंगे, ओके। So just array loop demo, okay. Array for loop demo, okay. This I'm taking first one, okay. अभी मेरा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है कि एरे के अंदर मैं 5 एलिमेंट स्टोर कराना चाहता हूँ, ओके। एरे के अंदर आई वांट टू जस्ट स्टोर दी 5 एलिमेंट, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 नेम स्टोर कराना चाहता हूँ, राइट। सो लेट मी पुट इन दिस वे, स्ट्रिंग एरे ऑफ नेम्स, ये नेम ले लूँ या str ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड हियर आई कैन पुट इन दिस वे Kajol, okay, I'm taking here Kajol is a name. Next I'm taking here Harish, then I'm just taking here Shyam, okay, this I'm taking here Dev, okay, and just I'm taking another name here Shailendra, okay, so I'm putting in this way, okay। so अब ये आप समझ गए होंगे, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग दिस लाइन, है ना, तो आप लोग आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें है ना इंटरनल एरे में क्या हो रहा होगा, इंटरनल एरे कैसे क्रिएट हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। इंटरनल एरे कैसे क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से, इस कितना बॉक्स है इसके अंदर, हाउ मेनी बॉक्स आर देयर। सो ऐसा कुछ एरे इसमें क्रिएट हो गया। कितने साइज का एरे क्रिएट हुआ होगा गाइस, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ एरे? 5 सर, 5 साइज का एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। तो 0 to 4 0 to 4 इंडेक्स होगा, 0 to 4, और 5 साइज का एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है एंड 4 लिखना है। एरे का साइज होगा 5, ठीक है। और हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट को। 0 इंडेक्स पे क्या चला गया होगा यहाँ पे, है ना, काजल, ओके। 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया होगा, हरीश। देन श्याम स्टोर हो गया होगा 2 इंडेक्स पे, ठीक है। देन 3 इंडेक्स पे यहाँ पे देव स्टोर हो गया होगा, ठीक है। 4th इंडेक्स पे यहाँ पे शैलेंद्र स्टोर हो गया होगा। ये आपका बन गया
ठीक है, वी जस्ट क्रिएट द एरे। जैसे मैंने ये लाइन लिखा है, आइदर मैं ये लाइन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, या मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि स्ट्रिंग एरे ऑफ str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे ऑफ, यहाँ पे 5 साइज पास करूं, फिर 1 इंडेक्स पे डालूं, 0 इंडेक्स पे काजल, 1 इंडेक्स पे हरीश, 2 इंडेक्स पे श्याम, 3 इंडेक्स पे देव एंड 4 इंडेक्स पे शैलेंद्र। तो मैनुअली भी इंडेक्स बाय इंडेक्स भी स्टोर कर सकता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो वन वे, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ये लाइन लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये थोड़ा सूडो कोड बनना चाहिए कि ये इंटरनल एरे ऐसे क्रिएट हुआ होगा। अब हमने मान लीजिए एरे क्रिएट कर लिया, तो एरे के इटरेट करने का तरीका क्या था? आई मीन अर्लियर क्या करते थे हम लोग, इससे पहले स्टार्टिंग में क्या करते थे हम लोग, एरे को प्रिंट कराने का क्या था, सिस आउट, राइट, और str आपको याद हो मैं 1 by 1 सभी से पूछता था, राइट। तो फॉर एग्जांपल देव इज इन दिस क्लास, तो str इंडेक्स ऑफ 0, देव क्या प्रिंट करेगा, ये देवार्यन व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट, str इंडेक्स ऑफ 0 अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट, काजल। काजल, इट इज गोइंग टू प्रिंट हियर काजल। वी कैन वेरीफाई कि देखो यहाँ पे इसने काजल प्रिंट कर दिया, ठीक है जी, काजल प्रिंट कर दिया। ये कॉमा क्यों प्रिंट कर रहा है, व्हाई इट इज प्रिंटिंग क्योंकि सर कॉमा मेंशन किया हुआ है, डबल कोट के अंदर आ गया, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, नाउ आई एम वेरीफाइंग इट। तो ये हम लोगों को समझ पड़ गया है, ठीक है, कि इंडेक्स वाइज अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, आप किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, ओके। तो अगर ये समझ पड़ गया तो एरे को आसानी से आप इटरेट कर लोगे। अब मैं str यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग जस्ट हियर str, आई एम पुटिंग हियर 1, तो मे बी अंजलि विल टेल कि अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा हूँ, इफ आई एम प्रिंटिंग str1, then what is going to print, हरीश। हरीश, इट इज, हम वेरीफाई भी करते जाएंगे कि इट इज प्रिंटिंग हियर हरीश, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट sys out, okay, sys out str, and I can just put here, I mean 2 index I'm just going to print, Pawan will tell on the 2 index what is going to print, श्याम। श्याम। तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, सो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट str on just we are printing here 3, we are going to print here 3, and let me ask Kajal, what is going to print here, Kajal, str index of 3, what is going to print here, Dev, right, it is going to print here Dev. So let me verify to someone else. Okay, str index of 4, so I think Anjana will tell. Anjana, what is going to print? Is Anjana in this class or not? Yes. Anjana, what is going to print? str index of 4, what is going to print? इनमें से क्या प्रिंट करेगा, काजल, हरीश, श्याम, देव, शैलेंद्र, क्या प्रिंट करेगा ये, देव। देखिए यहाँ से देखो आप, काजल 0 इंडेक्स पे है, हरीश 1 इंडेक्स पे है, श्याम 2 इंडेक्स पे है, देव 3 इंडेक्स पे है, और 4th इंडेक्स पे क्या है काजल, वो सॉरी शैलेंद्र, तो क्या प्रिंट करेगा, शैलेंद्र। अगर आपको ये समझना पड़े तो आप इसको भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इंडेक्स वाइज जैसे ना इंटरनल ऐसे स्टोर होगा, गुड। अभी क्या प्रिंट करने वाला है, तो मेरा यहाँ पे बताने, नाउ यू कैन म्यूट प्लीज, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, सम बैकग्राउंड, ओके। तो अभी हम लोग अब क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, एक तो हम सिस आउट बार बार लिख रहे हैं, राइट, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ना, ये हार्ड कोड है, 0 1 2 3 4, इसकी जगह हम कुछ कर सकते हैं, है ना। इसकी जगह क्या यूज कर लेंगे हम लोग, है ना, एक आई ले लेंगे, एक आई ले लेंगे और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, डायनेमिकली चेंज करेंगे, राइट, डायनेमिकली चेंज करेंगे। कैसे करेंगे अब इसको, सर आपने भी हार्ड कोड एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या होता है, हार्ड कोड मतलब जैसे मैनुअली मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 है ना, ये हार्ड कोड है। अगर मैं इसको डायनेमिकली लिखूं कि मैं खुद ना लिखूं इसमें ना, ये ऑटोमेटिकली इसमें हो, राइट, डायनेमिकली ऑटोमेटिकली चेंज हो, कैसे होगी वो देख रहे हैं हम लोग, है ना। वी आर गोइंग टू सी हाउ
डायनेमिकली कैसे होगी उस चीज को हम देखते हैं। तो इसको लूप में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो कि सारी चीजें मुझे अगर ये लूप से इटरेट करनी हो तो मुझे मालूम है ये कितने नंबर ऑफ टाइम लूप चल रहा है गाइस, कितने नंबर ऑफ टाइम लूप चल रहा है? 5 टाइम्स। 5 टाइम। ठीक है, ये कैसे पता लगा? क्योंकि इसका एरे का साइज 5 है। ठीक है, एरे का साइज 5 है। तो अब मुझे पता है कि किसी एरे का मुझे साइज निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ? इंट साइज इज इक्वल टू, एरे का नाम क्या है यहाँ पे? काजल विल टेल। काजल, यहाँ पे एरे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एरे? स्ट्रिंग। हाँ, मामला गड़बड़ हो गया यहीं पे। स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग कोई एरे का नेम नहीं है, ये एरे का टाइप है ना? str नेम है। ठीक है गाइस, str नेम है। और हम बोलेंगे str का टाइप, जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ डबल कोट में काजोल। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पर, और ये नेम का एरे का नाम क्या है यहाँ पे? नेम है ना। व्हाट इज द नाम ऑफ एरे? नेम। नेम का टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। इसी चीज को अगर मैं यहाँ बोलूंगा तो ये आपका स्ट्रिंग भी है और एरे भी है, तो क्या बोलूंगा? स्ट्रिंग एरे। str का टाइप क्या है? स्ट्रिंग एरे, है ना, स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एरे का नाम क्या? str। तो मैं यहाँ लिखूंगा str, और str के अंदर एक हमने एरे के टाइम पे सीखा था कि एक उसमें कीवर्ड होता है लेंथ। कौन सा कीवर्ड होता है? लेंथ। ये हमें साइज बता देगा। अब हमारे पास एरे का साइज मिल गया, तो ये पता लग गया कि कितने टाइम्स। अब बताइए जरा, बहुत ध्यान से समझना आप लोग कि एरे का इंडेक्स है 4, 0 to 4, और साइज क्या है? 5। अब बताइए जरा, अगर मैं जो लूप चलाऊंगा वो मैं साइज से एक कम तक चलाऊंगा। अगर साइज तक चला दिया तो साइज क्या है? 5, और 5 इंडेक्स कहीं है इसके अंदर? नहीं। तो कौन सी एरर आ जाएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 लिखा मैंने, और इंट कहाँ से करना है मुझे? आई की वैल्यू क्या रखूं मैं? 0, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे चलाना है। आई लेस देन साइज। ठीक है, आई लेस देन साइज। आई लेस देन साइज लिखा मैंने। ठीक है, तो अब बताइए आई लेस देन, मैंने इक्वल क्यों नहीं लगाया? अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो ये क्या करेगा? 5 तक चलने वाला है, और 5th इंडेक्स इसमें है ही नहीं, तो क्या दे देगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये ध्यान रखना है आपको, कोरिलेशन बिटवीन द इंडेक्स एंड साइज। साइज आपका 1 से काउंट होगा और एरे का इंडेक्स 0 से होगा। तो हमेशा जो एरे का आपको लूप चलाना है वो साइज से एक कम तक चलाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल न लगा के लेस देन लगाया है, और आई एम पुटिंग हियर आई प्लस प्लस। देखो जरा, आई प्लस प्लस आई एम पुटिंग हियर, आई प्लस प्लस लिखा मैंने यहाँ पे, एंड आई एम राइटिंग हियर समथिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे एक सिस आउट लगा रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग 1 सिस आउट। ओके, 1 सिस आउट में लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ? एरे का नाम क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द नेम ऑफ एरे गाइस? व्हाट इज द नेम ऑफ एरे? नेम ऑफ एरे क्या है? str। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो स्क्वायर बॉक्स में हार्ड कोड नहीं करूंगा 1 2 3, क्या करने वाला हूं मैं? यहाँ पे आई कोड कर दूंगा। इसको बोल रहा हूं मैं डायनेमिक, राइट काजुल? अब इसकी जो वैल्यू है ना, पहले 0 रहने वाली है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, और 4 तक ही चलेगा ये, राइट? तो देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। पहले तो हम लोग अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, राइट? इसको जस्ट वी आर गोइंग टू रिमूव। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है यहाँ पे? ये जो हार्ड कोड कर रहे थे हम लोग, है ना, ये हम उसको डायनेमिक कर दिया, हमने इसकी जगह आई ले लिया। और आई की वैल्यू क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम में 0 रहेगी, कंडीशन चेक होगी, जो एरे का साइज है उससे अगर कम है तो क्या करेगा? उसकी वैल्यू वो प्रिंट कर दे। तो हम उसको प्रिंट कराते आ रहे हैं। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दीज ऑल, है ना, वैसे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या, सॉरी, लेट मी रन इट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या हो गया, इसमें ये प्रिंट कर देगा, दिस इज गोइंग टू प्रिंट। तो एरे के थ्रू हमने क्या किया? सबको प्रिंट करा लिया। ठीक है, एरे के थ्रू हमने
सो काजल पहले प्रिंट किया, कैसे चला होगा ये लूप, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि क्या हुआ होगा यहाँ पे। अगर मैंने ये लाइन तो ऑलरेडी आई हैव टेकन एंड ये मैं लूप यहाँ से आपको पिक कर लेता हूँ एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी, हम लोग चलते हैं किस पे, पेंट पे। ठीक है गाइस, पेंट पे हम लोग चलने का यहाँ पे समझने की कोशिश इसको करेंगे। ठीक है, तो सेम कोड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो आप लोगों को कितना भी समझ आ गया हो तब भी आप समझना इसको। ठीक है, ये नहीं सोचना कि यार हम लोग है ना वी आर फीलिंग बोर की ये चीज है ना। सो हर बार कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको जैसे इस लूप को रन करना है तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्या है, एरे का साइज। तो एरे का साइज आप लोगों को यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख देता हूँ कि एरे का साइज क्या निकल के आया होगा यहाँ पे 5, राइट। तो मैं साइज का वैल्यू यहाँ पे 5 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे str.length कितना आया 5। अब देखिए जरा, int I is equal to 0 है ना, I less than size। साइज का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज, काजल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज। साइज का मतलब क्या है 5। तो मैं जब भी यहाँ पे 5 बोलूंगा तो डोंट बी सरप्राइज। ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग हियर int I is equal to 0 I less than 5। ठीक है, I less than साइज बोलूं या I less than 5 बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, तो I less than 5 इसका मतलब I की वैल्यू क्या है आपको ये देखना है। I की वैल्यू 0 है, 0 less than 5, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई है तो आपका क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ट्रू हो गई है तो str इंडेक्स ऑफ 0, I की वैल्यू 0 है तो बताइए जरा क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट, str इंडेक्स ऑफ 0, str इंडेक्स ऑफ 0 क्या प्रिंट करेगा। तो आपको देखना है कि 0 इंडेक्स पर क्या है। अगर आपको और ठीक से समझना है तो आई एम पुटिंग हियर सम इंडेक्स हियर गाइस, है ना, जिससे आप लोग, ये हमारा 0 इंडेक्स है। ठीक है गाइस, ये हम लोगों का 1 इंडेक्स है, दिस इज कॉल्ड 2 इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड 3 इंडेक्स एंड दिस इज कॉल्ड 4 इंडेक्स। ओके, तो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये क्या प्रिंट करने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट हियर, काजल, राइट। 0 इंडेक्स पर क्या है, काजल, दिस इज गोइंग टू प्रिंट हियर काजल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट क्या हुआ, अब इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा आपका, ये कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पे, वेयर इट विल गो, इट विल गो। अगर आपको ये भी अगर ठीक से नहीं दिख रहा हो तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक हियर सम बिग एरो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या आया, ठीक है, ये आपका ये कंडीशन, ये तो वन टाइम एक्टिविटी हो, ये कितने बार चलेगा गाइस, ये आपका फर्स्ट टाइम चेक होगा, फर्स्ट टाइम I इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, दिस इज कॉल्ड, ये आपकी क्या है, वन टाइम एक्टिविटी है, दिस इज क्या हो गया आपका वन टाइम एक्टिविटी है, ये आपकी वन टाइम एक्टिविटी है। ठीक है, वन टाइम एक्टिविटी है, ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर ऊपर गया और इसने क्या किया, इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा। तो हमने इंक्रीमेंट कर रखा है, इसने I इंक्रीमेंट कर दिया, तो I की वैल्यू क्या थी, पहले 0 थी, अब क्या हो गई 1। जैसी I की वैल्यू 1 हुई, ये फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक हो गई। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक हो गई, तो अब यहाँ पे 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया str ऑफ I की वैल्यू क्या है 1, तो बताइए जरा 1 पर क्या है, हरीश, तो ये क्या करेगा, हरीश प्रिंट करेगा। जैसे प्रिंट किया, अभी कंडीशन फॉल्स तो ही नहीं है, फिर गया यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हुआ, अब इसकी I की वैल्यू 2 हो गई, देखेगा 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे है str ऑफ 2, देखो जरा str ऑफ 2 पे क्या है, श्याम सर, तो श्याम प्रिंट कर देगा। फिर से अब गया, फिर ऊपर गया, इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हो गई 3, चेक करेगा 3 लेस देन 5, साइज का मतलब 5 है, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया str ऑफ 3, तो देखिए जरा 3 इंडेक्स पर क्या है, देव, तो देव प्रिंट कर दिया। और फिर से अब गया, फिर से ऊपर गया और इंक्रीमेंट हो गया, I की वैल्यू हो गई 4, चेक करेगा 4 लेस देन 5, 5 साइज मतलब 5, तो 4 5 से लेस देन होता है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया str ऑफ I मतलब 4 कितना है यहाँ पे, सेलेंथ, तो सेलेंथ को प्रिंट करेगा। फिर से ऊपर गया, I प्लस प्लस हुआ, I की वैल्यू हो गई 5, अब बताइए जरा यहाँ पे 5 लेस देन 5, 5 से छोटा होता है क्या, नो सर, नहीं हुआ, तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी, और इस लूप से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लूप आपका चल रहा है। अगर आपको मैं इसका डायग्राम भी आपको शेयर कर देता हूँ, ये प्रोग्राम भी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, और आपके उसमें ना, अगर ये आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक से समझना। ठीक है, और ये किस चीज का अल्टरनेट है, ठीक है, उन लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन लाइन को कमेंट कर देता हूँ, नॉट लाइक दिस,
मैं सबको एक साथ कमेंट कर देता हूँ, कैसे करूंगा, सबको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए इससे, ठीक है, तो मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ स्लैश स्टार एंड इन दी एंड आई कैन यूज हियर स्टार स्लैश समथिंग, ओके। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आपको भेज देता हूँ कि इसका मैंने ये जो मैं बार बार लिख रहा था इसकी जगह मैंने अब क्या यूज कर लिया है, लूप। लूप कैसे काम कर रहा है, वो मैं दोनों पिक्चर भी दे रहा हूँ और ये भी भेज रहा हूँ, आप इसको तसल्ली से समझना डे में, ठीक है, और इसको फिर ट्राई करना। दुनिया का फिर कोई भी हम लोग है ना लूप इटरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ओके गाइस। अभी हम लोग एक इसका एडवांस वर्जन भी देखने वाले हैं, इनहेंस फॉर लूप, ठीक है। सो जस्ट आई एम शेयरिंग हियर। तो वंस अगर हमें ये समझ आ गया फिर इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ओके गुड, वेरी गुड, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इट्स गुड, गो इन दिस वे ओनली। Okay, so I'm sharing this program here and please do the practice, okay? So now let me इसकी explanation picture भी मैं आपको भेज देता हूँ आपको कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। कोई इसमें point समझना है, feel free to ask, okay? Feel free to ask. Okay, next यही चीज को हम लोग है ना enhance for loop से देखने वाले हैं ना, we about to see through the enhance for loop, okay? So I hope you are able to get all these two things, okay? अगर कोई इस ग्रुप में नहीं है प्लीज लेट मी नो। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि इसी चीज Can we use negative values in the for loop? Can we give the negative values in the for loop? I mean अब देखिए आप यहाँ पे बोल रहे हो नेगेटिव वैल्यू आपने दे दिया ये -1, ठीक है, -1 दे दिया। तो हम ये देखते हैं अगर ऐसा दिया तो होगा क्या, ठीक है। if we are giving this, तो आप क्या होगा यहाँ पे कि आई की वैल्यू क्या होने वाली है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, -1। अब आपके पास जो एरे है इसमें कहीं -1 है, सॉरी कोई इंडेक्स ऐसा है, सॉरी यहाँ पिक्चर पे देखते हैं हम लोग, No. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई नेगेटिव इंडेक्स है नहीं, राइट, वी डोंट हैव। तो एक इसमें ना एरर आती है, ये हमने अभी शायद अभी हम लोगों ने एरे में ये चीज पढ़ेंगे अभी, है ना, एरे हम लोगों का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अगर नेगेटिव नंबर दे देंगे ना तो एरे में एक एरर आती है। एरे में क्या एरर आएगी, सी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि इसको नेगेटिव इंडेक्स मिल ही नहीं रहा है, राइट, नेगेटिव इंडेक्स मिल नहीं रहा है। अब आप रिलेट कर पा रहे हो ये क्यों आया, राइट, वो क्या किया होगा यहाँ पे, व्हाट इट डिड, str इंडेक्स ऑफ -1 और -1 इस वाले इंडेक्स में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो लूप कोई एरर देने नहीं वाला, लूप नहीं देने वाला, राइट, ये और कंपाइल टाइम एरर कंपाइलर भी नहीं देने वाला। कौन देगा इसमें, रन टाइम आपकी एरर आएगी, राइट, है ना, रन टाइम एरर आएगी आपकी, राइट, कि आप एरे से वो इंडेक्स फेच करने की कोशिश कर रहे हो जो इंडेक्स इसमें है ही नहीं, ठीक है। नॉट ओनली नेगेटिव, है ना, ये साइज से अगर आप साइज के इक्वल भी अगर आप फेच करोगे तब भी ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा, ठीक है। So I hope you understand this. तो suppose that हम सर सिंपली प्रिंट कराना चाह रहे हैं कोई चीज, तो क्या हम एरे को नेगेटिव में इनिशियलाइज कर सकते हैं कि 0 से -5 तक चले? और एरे को नहीं कर सकते, एरे को हम नेगेटिव, एरे का साइज नेगेटिव नहीं दे सकते, राइट। फॉर लूप को कर सकते हैं हम, फॉर लूप में तो नेगेटिव अभी दिया ना हम लोगों ने, नेगेटिव दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना। नहीं, अभी तो हम एरे प्रिंट करा रहे हैं और सिंपली अगर हमें कुछ और प्रिंट कराना है, सपोज करिए हेलो प्रिंट कराना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम 0 से -5 तक चला सकते हैं लूप को? बिल्कुल चला सकते, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना, वी कैन रन इट, है ना। ओके सर। नेगेटिव नंबर क्या होगा यहाँ पे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीमेंट मतलब अगर आपको करना है कि डिक्रीमेंट नेगेटिव में चलाना है आपको, राइट, तो आप चला सकते हो उसको। यहाँ साइज भी आप नेगेटिव में दे सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे नेगेटिव भी दे सकते हो, जैसे -6 दे दो आप यहाँ पे, सॉरी आप यहाँ पे कहाँ गया माइनस, है ना, -6 दे दो, नेगेटिव में इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला नेगेटिव नंबर में, राइट। ओके सर, एक क्वेश्चन और, हाँ, जैसे अब ये स्टेप हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 का स्टेप ले रहा है ये हमारा, तो क्या 2 का भी ले सकता है? ले सकता है यहाँ पे, है ना। आप इसमें +1, ये प्लस का मतलब होता है 1 प्लस करना, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, +2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि हर बार ये क्या करेगा, नहीं, फिर हम ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे i =
i प्लस समथिंग, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, ओके सर। है ना। कुछ इस Okay. तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसमें फिर, है ना। प्रीवियस वैल्यू में ये क्या करेगा, 2 प्लस करता जाएगा यहाँ पे, राइट। लेकिन ये जो ऑपरेटर है प्लस इंक्रीमेंट और माइनस, एक बार में 2 प्लस भी कर सकते हो, 3 प्लस भी कर सकते हो, कितना भी प्लस कर सकते हो वन टाइम में ना। इट डिपेंड कि इसको हम आगे लूप में देखेंगे भी, है ना, इनर लूप वगैरह हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो वी विल सी दैट। ओके, अब देखिए ये वाला जो लूप था हम लोगों का, अब इससे भी एक एडवांस लूप है, उसकी हम लोग उसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, है ना, इनहेंस फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सो इनहेंस फॉर लूप क्या है, ये आपका कब आया, फॉर ईच बोलते हैं इसको ना, फॉर ईच। हालांकि ईच इसमें लिखा नहीं रहता, है ना। तो इट इंट्रोड्यूस इन 1.5 वर्जन, इट इंट्रोड्यूस इन 1.5 वर्जन, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट लूप टू रिट्रीव द एलिमेंट ऑफ एरे एंड कलेक्शन। कलेक्शन या एरे से आप एलिमेंट रिट्रीव करने के लिए हम लोग ये फॉर ईच लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हम देख चुके हैं, है ना, वी हैव सीन दिस कि नॉर्मल जैसे आपने अगर कोई लूप है और आपको, है ना, जैसे ये जस्ट प्रिंटिंग आपके में एरे में क्या पड़ा हुआ है, 10 20 30 40 50, ये कुछ इस तरीके से इसमें एलिमेंट पड़े हुए। आपने इसको ना ट्रेडिशनल फॉर लूप से आपने इसको इटरेट कर लिया 10 20 30 40 50, ठीक है। ये हमारा फॉर ईच लूप ये है। फॉर ईच में क्या करते हैं, इंट x कॉलन a, ये बेसिकली क्या है आपका, आप लोग बता सकते हो व्हाट इज दिस a, एनीवन कैन टेल व्हाट इज दिस a। तो आपको यहाँ देखना चाहिए इंट एरे ऑफ a इक्वल टू 10 20 30, तो a आपका क्या है, एरे है। एरे को एक बॉक्स कंटेनर मान के चलिए जिसमें 0 इंडेक्स पे 10 है, 20 है, 30 40 50। तो ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट को पिक करेगा, x के अंदर डालेगा और x को यहाँ प्रिंट करा लेगा, फिर दूसरे को पिक करेगा, यहाँ से पिक करेगा, x में स्टोर कराएगा, x को प्रिंट करा लेंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस ए के अंदर होंगे, इस ए एरे के अंदर होंगे, सबको 1 बाय 1 निकाल के एंड वी कैन प्रिंट हियर। ओके, तो ये आपका एडवांस फॉर लूप है ना, एडवांस फॉर लूप है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसका इसमें कोई हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, है ना। बस एक मिनट देना। ओके, तो आई थिंक कि हम लोगों को ये चीज, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। इसमें मतलब जितना भी एलिमेंट होगा ये सबको आपको इटरेट करके देगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। तो आई हैव शेयर्ड दिस प्रोग्राम विथ यू। तो ये हमें समझ पड़ गया है, ठीक है, ये हम लोगों को समझ पड़ गया। अनदर यहाँ पे अनदर प्रोग्राम जस्ट नो क्रिएटिंग हियर array for each demo one, okay, for each demo just 1 or 2 I can take here for each, okay। so sum यहाँ पे अब मैं इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ अरे, either I can take a string, कैरेक्टर ले सकता हूँ, इंटीजर किसी भी प्रिमिटिव टाइप का मैं एरे क्रिएट कर सकता हूँ। तो जस्ट आई एम टेकिंग हियर int array of age equal to and just I am putting here some 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं ये लिख रहा हूँ आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि 10 है वो 0 इंडेक्स पर होगा, 20 है 1 इंडेक्स पर, 30 आपका 3 इंडेक्स पर, और ये आपका 40 होगा, आई मीन सॉरी 3 इंडेक्स पे, 30 होगा 2 इंडेक्स पे एंड 50 होगा 4th इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल लूप अगर हम लगाते तो कैसे लगाते, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ। तो आइदर मैं पहले इसका साइज निकाल लूं या यहीं पे निकाल सकता हूँ, ठीक है, एंड i प्लस प्लस। तो ये मेरा ट्रेडिशनल वे है, आई मीन है ना, दिस इज माई ट्रेडिशनल वे कि हम लोग ये मैं जैसे ना ओल्ड फॉर लूप के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सिस आउट लगाऊंगा एंड व्हाट आई कैन डू हियर a इंडेक्स ऑफ i, इस तरीके से मैं लिखूंगा एंड आई कैन प्रिंट हियर, ठीक। 1 बाय 1 मैंने सबको यहाँ पे प्रिंट करा लिया 1 बाय 1,
ऑल मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब मैं इस लूप के बजाय जस्ट मैं इस लूप को अब यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। दिस लूप आई एम कमेंटिंग हियर, सॉरी, ये हमने लिखा, ये लूप हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज कर रहा हूँ, फॉर ईच। तो फॉर ईच कैसे यूज करूंगा, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फॉर ईच में आपको जो वैल्यू इटरेट करनी है उसका टाइप क्या है। आप मुझे बता सकते हो जो वैल्यू इसके अंदर है उसका टाइप क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यू दिस एरे कंटेन गाइस? इंट टाइप है। तो इंट टाइप का कोई हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई एक्स वेरिएबल ले लिया, इंट टाइप का एक्स वेरिएबल ले लिया, कॉलन, और किससे मुझे वैल्यू इटरेट करनी है, ए से, है ना। ए क्या है आपका, एरे है, तो मैं इससे वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, है ना। इससे वैल्यू यहाँ से निकाला, एक्स के अंदर डाला, और एक्स को मैं नीचे यहाँ पे क्या प्रिंट करा लूंगा, यहाँ पे एक्स को मैं यहाँ प्रिंट करा लूंगा, दैट्स इट। तो ये आपका इससे भी कन्वीनियंट लूप हो गया, राइट। बहुत सिंपल है, ये ए से वैल्यू 1 बाय 1 पिक करेगा, एक्स में डालेगा और एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये लूप, इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि आप इस लूप पे यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते थे, आप इसको, आप ऑल एलिमेंट निकालो, आप 2 चाहो तो 2 एलिमेंट भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि आपको क्या करना होगा यहाँ पे लेस देन, जैसे ना 3 समथिंग यू नीड टू पुट हियर, ठीक है। आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जितने भी आपके एरे के अंदर एलिमेंट होंगे ये सबको निकाल के देगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट इट इज गोइंग टू गिव, ओके। तो ये आपका कौन सा लूप है, फॉर ईच, दिस इज कॉल्ड दी फॉर ईच। अब बताइए जरा, अगर मेरे पास स्ट्रिंग होता, अगर स्ट्रिंग होता तो मैं इस इंट की जगह क्या ले लेता, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता। अगर कोई यहाँ कैरेक्टर एरे होता तो मैं यहाँ इंट की जगह क्या ले लेता, कैर एरे टाइप की कोई वैल्यू ले लेता, तो एक एक करके वैल्यू इसमें स्टोर करता है, यहाँ प्रिंट कर लेता, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम ऑल्सो विथ यू, है ना। सो डू दी प्रैक्टिस विद दिस, ये फॉर ईच लूप का भी आप यूज करके देखो एंड नॉर्मल लूप का भी आप यूज करके देखो, ओके। and do the practice and please let me know if you face any challenge and any questions, है ना, related to this। तो अगर हम लोगों को ये थोड़ा सा अब समझ पड़ गया है, if we understand it, तो हम लोग अब ठीक है। तो इतना आप लोग इसका प्रैक्टिस करना फॉर लूप का, है ना, डू दी प्रैक्टिस विद दिस फॉर लूप, और आपका, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ इससे अब, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग अकेला यही नहीं, इनर लूप भी यूज कर सकते हैं ना, वी कैन यूज दी फॉर लूप का इनर लूप भी हम लोग करके ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट मी सी कि यहाँ पर हमारा क्या है, स्विच ना, बिफोर द स्विच देयर इज अ लूप, है ना। सो लेट मी कम ऑन द लूप। सो लूप में हम लोग, है ना, इससे अब हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं है ना, तो प्रोग्राम्स हम लोग क्वेश्चंस यहाँ से पिक करने वाले हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चंस बी अबाउट टू पिक फ्रॉम हियर, ये तो हमारा इफ एल्स है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इफ एल्स। वेयर इज द लूप गाइस, तो ये हमारा लूप शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। सो लूप विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नेक्स्ट थिंग ऑफ लूप। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन प्लीज पूछ लेना, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ समझ नहीं पड़ता ना, इफ समवन इज रेजिंग दी हैंड, तो आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन आस्क डायरेक्टली द क्वेश्चन, ओके, वर्बली यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ओके। सो लेट मी कम टूवर्ड्स द लूप। तो लूप हमने अलग अलग देखा, कौन सा लूप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी हम लोग, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड गाइस फॉर लूप, है ना, while, do while and for loop। so lot of loops we have discussed here, right। तो loops का प्रोग्राम हम लोग, है ना, while loop, either while loop, okay। तो हमें चाहिए क्वेश्चन, है ना, we need just question, write a program to print number from 1 to 10 using while loop। आप क्या कर लोगे, using for loop, है ना, while क्या लिख दोगे आप, for loop। 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है, तो दिस क्वेश्चन यू कैन पिक, है ना, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे, दिस क्वेश्चन यू कैन टेक दिस, है ना। तो अब आप क्या करोगे, सेम प्रोग्राम आप वाइल से बनाओगे, सेम प्रोग्राम आप किससे बनाने वाले हो, आप वाइल से बनाओगे, फिर किससे बनाओगे, डू वाइल से बनाओगे, सेम प्रोग्राम आप फॉर लूप से बनाओगे। तो एक ही प्रोग्राम को आप बार बार बनाइए, ठीक है। जिनको समझ पड़ गया वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स नंबर इन रिवर्स ऑर्डर विद डिफरेंट ऑफ 2। रिवर्स करना है लेकिन 2 के डिफरेंस से रिवर्स करना है, ठीक है।
तो वो आप कैसे यहाँ पे लिखोगे ये चीज, है ना। तो अनदर प्रोग्राम आई एम गिविंग रिवर्स। तो अभी यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया जो अभी क्वेश्चन किया था ना, किसने किया था? मैंने किया था सर, माइनस में जो मालूम किया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। तो माइनस वाला ना चांद ने क्वेश्चन किया था। तो वो तो ऐसे अब इसको हम रिवर्स करेंगे, तो हाउ वी कैन डू द रिवर्स। तो इसके लिए मैं अनदर यहाँ पे आपको दूसरा प्रोग्राम दे रहा हूँ। आप कोशिश ये करिए, हाउ यू विल डू दिस, ये आप इग्नोर कर देना, ठीक है। आई डोंट नो हाउ दिस कैरेक्टर इज पिकिंग। तो प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर है ना रिवर्स, है ना। नंबर आपको किस में करना है, रिवर्स, लेकिन 2 का डिफरेंस होना। रुको गाइस, गड़बड़ हो गया। यहाँ ऑप्शन देना चाहिए कि मैं इसको डिलीट कर पाऊँ, है ना। नहीं, तो आई कैन जस्ट रिएक्ट है, प्लीज इग्नोर इट, इग्नोर इट, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम गिविंग दी, लेट मी गेट फ्रॉम हियर, ओके, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर विद डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे इसको यू कैन मेक दिस प्रोग्राम। अब इसको अलग अलग लूप में आप इसको यूज कर सकते हो, अलग अलग लूप में आप इसको, आप वाइल में बनाइए, डू वाइल में बनाइए, एंड फोर में बनाइए। जिनको आता है देखो वो इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो अभी इनिशियल में सीख रहे हैं ना, वो कोशिश ये करिए कि वाइल में भी बनाओ, डू वाइल में भी बनाओ, देन फोर में भी बनाओ, ठीक है। वो आप ट्राई करो इसमें, ठीक है। देन प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, है ना। कोई भी नंबर जैसे इनके जैसे हम दें, उन सबको क्या कर दे, सम कर दे, है ना। तो सम कर दे। तो नाउ नोट डाउन द पेज नंबर 82, ओके। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग इनर लूप सीखने वाले हैं, ठीक है। व्हाट वी अबाउट टू सी, इनर लूप हम लोग सीखने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग इनर लूप के अंदर लूप, और उससे हम लोग जैसे स्टार का जैसे ट्राइंगल प्रिंट करना है, राइट। तो वो बहुत सारा हम लोग उसमें ना, वी ट्राई टू पुट अवर लॉजिक हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। सो 1 and 2 क्लास आपकी लूप पे ही होने वाली है, जिससे आप लोग क्या होगा कि एटलीस्ट आप ना छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। फिर आप कोशिश करिए कि 1 day यू आर गोइंग टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम, ओके। एक दिन में आप एक प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, और फिर आप बनाते रहिए, है ना। जितना ज्यादा प्रोग्राम बनाओगे उतना ज्यादा मेमोरी आपकी शार्प होगी, ठीक है। और फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ जाएंगे। वंस है ना 1 and 2 क्लास वी विल गो ऑन दिस लूप ओनली। वाइल लूप आपका नहीं हो पा रहा है सर, हाँ पवन क्या, लॉजिक डेवलप नहीं हो पा रहा है सर। ठीक है। प्रोग्राम अभी देखते हम हैं। लोग जब इनर लूप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर हम कुछ प्रॉब्लम हम अपनी सॉल्व करेंगे। आप ऐसे करके कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फॉर लूप आपको समझ आ गया, राइट। फॉर लूप आपको समझ आ गया। अब जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा हम लोगों का क्या होगा, लॉजिक्स डेवलप करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो प्रॉब्लम्स अभी मैं बहुत छोटी छोटी दे रहा हूँ, तो अभी बिग आपको सोचना भी नहीं है। जैसे मैंने अभी ये लिखा, प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, है ना। तो एनीवे आप पहले इस प्रॉब्लम को समझना। प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, और प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, है ना। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन गेट दी फैक्टोरियल। तो पहले आप देख के करिए, है ना। देख के उस लूप को समझने की कोशिश करो, फिर आप उसको देख देख के टाइप करो, है ना। फिर पेन कॉपी ले लो, उस पर चलाने की कोशिश करो कि ये कैसे चल रहा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग इसको है ना रन कर रहे थे ना मैनुअली, कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट। तो आपको करना क्या है कि ठीक है, प्रोग्राम आप टाइप कर लो, समझ लो, रन कर लो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है, अब ये कैसे चल रहा होगा, लूप वैसे रन कैसे हो रहा होगा। तो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना है। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि आपका लूप चाहे 10 टाइम्स चले, 15 टाइम्स चले, चाहे आपका 5 टाइम्स चले, आपको 5 टाइम्स रन करना है इसको। गलती से आपने ऐसा किया कि 1 and 2 टाइम्स चला लिया, ठीक है, बाकी तो ये चल रहा है ना, तो फिर वो चल ही रहा है। आपको अपने ब्रेन में 10 टाइम्स लूप यहाँ पे मूव करना होगा, है ना। आपको इसको है ना, आपको है ना बोरिंग फील नहीं करना है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन है ना, जैसे ना एक उसमें ना अपने आप को इन्वॉल्व करता है, और वो एक ही चीज के बारे में उस समय वो सोच रहा होता है, राइट। तो ये दिस इज अ वे कि इसी वे में फिर वो क्या होगा कि आपका ब्रेन अगर स्टे कर गया किसी वन प्लेस पे, तो फिर तो समझो आप है ना उसकी कैपेसिटी है ना उसकी बढ़ती चली जाएगी, राइट। उस समय आप कुछ और नहीं सोच रहे हो, है ना।
तो जितने टाइम्स लूप चल रहा है आप उतने टाइम्स अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि आप उस समय वही सोच रहे हैं जो आप इसमें कर रहे हो, ठीक है। तो आपका 10 टाइम्स लूप चल रहा है, राइट, तो अब इसमें जितना अब अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा हर रोज, आप फिर कोशिश करते रहिए। अभी इन जो मैंने अभी क्वेश्चन दिए हैं 2-3 क्वेश्चन उनको ट्राई करिए, ठीक है। फिर आप पेज नंबर नोट कर लो 83, और इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप जैसे ना बनाने की कोशिश करिए, जो जो प्रोग्राम्स आपको समझ में आ रहे हैं। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, ये तो सॉल्व प्रॉब्लम्स दी हुई हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे डू व्हाइल के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, तो देन ट्राई टू सॉल्व बाय डू व्हाइल्स, है ना। एंड उसके बाद फिर आपके फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फॉर लूप के क्वेश्चंस हाउ वी कैन सॉल्व थ्रू दी फॉर लूप, ये फॉर लूप के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर रिवर्स ऑर्डर विद द डिफरेंस ऑफ 2, है ना। तो मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव नंबर्स विदाउट यूजिंग, मतलब ना स्टार, तो आई मीन मल्टीप्लाई सिंबल का यूज ना करके फिर भी हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, है ना। सो हाउ वी कैन डू दैट। देन आपका यहाँ पे आ गया कि प्रोग्राम टू जनरेट फेबनो की सीरीज, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फेबनो की सीरीज आप कैसे प्रिंट करोगे, राइट। तो सीरीज आप यहाँ पे ना ये फेबनो सीरीज वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएं तो आप कोशिश करिए दुनिया में जितने भी सीरीज के आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। सीरीज कैसे, जैसे 1 की आई मीन नो जैसे नंबर है उसी का स्क्वायर करो, है ना, फिर उसकी सीरीज निकालने का स्क्वायर उसका क्यू कर दो, है ना, पावर 3 लगा के फिर उसकी सीरीज निकालो, 4 लगा के फिर सीरीज निकालो। तो एक अगर आप फेबनो की सीरीज बना लेते हो तो आप मोस्ट ऑफ ऑल सीरीज आप उसको सॉल्व कर पाओ। एक बार आपको पता लग जाए कि अगला नंबर कौन सा आ रहा है ना, तो वो अगर आपको पता लग जाता है तो हम इस पे आएंगे स्लोली, ठीक है। तो कल हम लोग इनर लूप और समझेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द इनर लूप फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें जब कंफर्टेबल हो जाओगे मैं अपना सिलेबस आगे बढ़ा दूंगा, और आप कोशिश ये करिए कि साथ साथ में एक दिन में एक प्रोग्राम आपको बनाना ही है, ये ट्राई करना है आपको, ठीक है। नहीं बना पा रहे तो अगले दिन फिर ट्राई करना है, फिर नहीं बना पा रहे उसके अगले दिन फिर ट्राई करना है। कोशिश ये करनी कि प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। सो इन दिस वे, और फिर आप 15-10 डेज बाद देखोगे कि आप है ना ठीक ठाक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम दी जा रही है, आपके पास मल्टीपल जैसे ऑपरेटर्स हैं, लूप्स हैं, बहुत सारे आई मीन कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न, उनका यूज करके, है ना, उनका यूज करके वो प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप व्हाइल में बनाइए, है ना, डू व्हाइल के क्वेश्चंस इसी से पिक कर लीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फॉर लूप के क्वेश्चन पिक कर लीजिए। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है देन हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि लूप कैसे चल रहा है, राइट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो वो चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक फॉर दी टुडे आई हैव डन। Anyone have any question, any concern, feel free to ask. No question? सर system.out.println की शॉर्टकट क्या थी जो आपने यूज की थी? sys out, है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा sys out, जैसे मैं ऐसे लिखूं sys out, और कंट्रोल और जो बड़ी वाली की होती है ना स्पेस की, कंट्रोल स्पेस ऐसे करूंगा, बस एंटर प्रेस कर दूंगा, sys out लिख गया। नॉट ओनली दिस, अगर आपको मैन भी लिखना है ना, मैन, तो MAIN कंट्रोल स्पेस और आप ऐसे करोगे तो मैन को भी ये लिख देगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिस आउट, है ना, सिस आउट कंट्रोल स्पेस। लेट मी पुट दिस ऑन द ग्रुप हियर। सिस आउट के बाद आपको क्या करना है, CTRL प्लस आपको स्पेस की, है ना, sys out प्रेस कंट्रोल स्पेस की, ओके। तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सो any other question guys? No? So thank you guys for giving your time. So again we'll meet tomorrow. Thank you, bye. So array का आई थिंक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें कुछ और चीजें, कुछ टॉपिक होंगे तो आई विल फाइंड आउट, और आगे की क्लास है ना, जिन लोगों की क्लास छूटी हुई है उनको हम लोग है ना कोशिश ये करें कि 8 से 8:30 के बीच में उनको अपन कवर कर लें, ठीक है गाइस। तो टुमारो आई विल फाइंड कि कौन सा टॉपिक हमारा लेफ्ट है। थैंक यू, आई थिंक टुडे आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट। थैंक यू गाइस, Thank you, sir. बाय।